Hi everybody, this is VV Kulkarni from PM Shri School, JNV, Dharashiv. Today, in this video, we are going to see a competency-based question in which we will try to understand how drone cameras are useful to find out the distance between the accident site and the ambulance. We will also try to find out the time taken by the ambulance to reach the accident site with the help of the angle provided by the drone camera. So watch this video till the end and I am sure you will enjoy it. Okay, good evening children. क्या दिख रहा है आपको यहां पर? क्या दिख रहा है? हाँ, एक्सीडेंट हो गया. एक्सीडेंट हो गया, ठीक है. किसी को एक्सीडेंट दिख रहा है. और क्या दिख रहा है? एम्बुलेंस दिख रहा है. किसी को और रोड दिख रहा है, पुलिस दिख रहा है और ड्रोन दिख रहा है. हाँ, क्या दिख रहा है? यहां पर जो है वो कार का एक्सीडेंट हो गया है. एम्बुलेंस आ रही है, राइट. और ड्रोन कैमरा से क्या किया जा रहा है? ट्रैक किया जा रहा है एम्बुलेंस को. अब कौन सा चैप्टर लगता है आपको ये सब? ट्रिग्नोमेट्री हो सकता है ना. मतलब ट्रिग्नोमेट्री हमारी काम की चीज है. अब कैसे काम आता है? लेट अस सी. A drone was used to facilitate movement of an ambulance on the straight highway to a point on the ground where there was an accident. So there was an accident and the drone is used here to track the location of ambulance. Where there was an accident, ambulance was traveling at a speed of 60 km per hour. What is the speed of ambulance? 60 km per hour. The drone was stopped at a point Q, 100 मीटर वर्टिकली अबाउ द पॉइंट. ड्रोन को क्या किया? 100 मीटर ऊपर वर्टिकली क्या कर दिया? यहां पर देखिए, दिस इज द प्लेस. यहां पर कार है. इस प्लेस का नाम हमने दिया है P पॉइंट. 100 मीटर ऊपर ड्रोन कैमरा है, यहां पर खड़ा है. ओके, यहां से एम्बुलेंस हेल्प करने के लिए आ रहा है. किस स्पीड से आ रहा है? 60 किलोमीटर. कितना स्पीड से आ रहा है एम्बुलेंस? 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से एम्बुलेंस हेल्प करने के लिए, रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए आ रहा है. द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द एम्बुलेंस वाज फाउंड टू बी 30 डिग्री एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट. अब वी आर ट्राइंग टू ट्रैक हाउ फार इज द एम्बुलेंस फ्रॉम द एक्सीडेंट साइट. कब तक एम्बुलेंस पहुंचेगा ये देखने के लिए हम ड्रोन कैमरा से क्या कर रहे हैं? वी आर ट्राइंग टू दिस वन we are trying to track the ambulance and how much time will it take. ये हमारा situation है. So what is the situation? Accident has taken place. Drone camera is placed at a height of how much? What is the height? 100 meters above, vertically above the ground. Okay, and ambulance is approaching the accident site at a speed of 60 kilometers per hour. Now this is the, what is it? Situation. Now based upon this situation, you are asked some questions. What are those questions? Let us see. Okay, the first question that is asked to you is, what is it? Represent the above situation with the help of a diagram. First is what? Represent the above situation with the help of diagram. Very simple children. See, this is the road. Let us say इसका नाम क्या दिया है यहाँ पर? एम्बुलेंस. जहां पर एक्सीडेंट हुआ उसको क्या कहा गया? पॉइंट P कहा गया है. ड्रोन कैमरा कितने ऊपर है? ड्रोन कैमरा कितना ऊपर है? 100 मीटर. उसका नाम क्या दिया है बच्चों? Q दिया है आपको. तो ये पॉइंट Q है. कितना मीटर है ये? 100 मीटर अबव द ग्राउंड है. और जहां से एम्बुलेंस आ रहा है उस पॉइंट को क्या कहा गया? नाम दिया है कुछ? नहीं दिया तो आप दे सकते हो. लेट अस से R यहां पर पॉइंट है. यहां से एम्बुलेंस आ रहा है और ये दिस इज द, व्हाट इज इट? लाइन ऑफ ऑब्जर्वेशन है. और यहां एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बन रहा है बच्चों? एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बन रहा है? 30 डिग्री बन रहा है. एंड दिस इज द, ये अल्टरनेट एंगल्स हो जाएगा, इसलिए कितना होगा बच्चों? 30 डिग्री होगा. नाउ दिस इज द फिगर दैट यू शुड नो, दैट यू शुड अंडरस्टैंड. ओके, ये क्वेश्चन आपको पूछा है. ओके, दिस इज द This is the drone camera at a height of 100 meter above the accident site. The angle of depression is how much?
30 degree and I have to represent the following situation. And आप क्या करो, if you want you can write there, this is what accident place, आप चाहिए तो यहां पर लिख सकते हो accident place. Okay, this is the road, this is the what is it, ambulance. Okay, या फिर आप सेंटेंस में भी लिख सकते हो R represent the point of the moment of the point of location of ambulance. P is the place of accident. Q is the place where drone camera is placed above the ground. Right? Now, if you draw this much of figure, you are going to get 1 marks for this. You are going to get 1 marks for this. Okay? Right? Only that much for 1 marks. Now, next thing is, the next question that is asked to you is, find the distance between the ambulance and the site of accident P at a particular instant. Use root 3 as 1.73. So, see, यहां से हम देख रहे हैं कि 30 डिग्री पे एम्बुलेंस है. ओके, तो ये कितना डिस्टेंस होगा किसके बीच में, एम्बुलेंस और एक्सीडेंट साइड से. तो आप राइट एंगल ट्रायंगल लोगे. इन राइट एंगल ट्रायंगल QP, let us say this point as R. So in right angle triangle QPR, देखो, this is the height of the drone camera, this is the distance. तो ये आपको height of the drone camera पता है, distance आपको ढूंढना है. तो अपोजिट साइड और डिस्टेंस को कनेक्ट करने वाला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन सा है, tan थीटा है. तो अपोजिट बाय बेस कौन सा होगा, tan थीटा होगा. तो मैं यहां पर क्या करूंगा, आई विल अप्लाई tan 30 डिग्री इज इक्वल टू दिस साइड, व्हाट इज इट, इसका नाम क्या दिया, Q है ना, QP अपॉन PR. तो tan 30 इज हाउ मच, 1 by root 3 QP. दिस इज द हाइट ऑफ द ड्रोन कैमरा, कितना है, हाउ मच इट इज, 100. And PR is the distance between the accident site and the ambulance, and that is what PR. मैंने उसको ऐसे ही रखा. Now what I'll do, I'll cross multiply. So PR is equal to how much, 100 root 3 meters. Now already आपको root 3 की वैल्यू दे दी है यहाँ पर. What is the value of root 3? 1.73. So what I'll write here, 100 into 1.73. So that is equal to how much? How much will it be? How much will it be? 173 meters. That means what? If the ambulance is approaching at a speed of 60 kilometers per hour, and if the drone camera is at the height of 100 meters above the accident site, and if the angle of depression is 30 degree, then the distance between the ambulance and the accident site is how much? 173 meters. Am I clear? Am I clear? तो ये 30 डिग्री के लिए याद रखना कि कितना डिस्टेंस आया अपने पास. व्हाट इज द डिस्टेंस दैट वी हैव गॉट हियर नाउ, 173 meters from the site of the accident or from the location of the accident. Okay, नोट करना है कर लो. तो देखिए, एक बात मैं बताना भूल गया कि दिस एंगल एंड दिस एंगल आर अल्टरनेट एंगल्स. These two lines are parallel to each other. Now this line and this line angles are what? Alternate angles. Okay? तो alternate angles होने की वजह से मैंने क्या किया, opposite by base को यूज किया. Am I right? Fine. We'll go for next question now. Find the time taken in seconds in which the angle of depression changes from 30 degree to 45 degree. Find the time taken in seconds when the angle of depression changes from 30 degree to 45 degree. Okay children, देखिए, this was our drone camera if you remember. यही मैंने आपको बोला था कि what is it, ये आपका line of observation था. और पहली बार आपको कितना डिग्री दिखा रहा था ये, what was it, ये alternate angle कितना हो गया था, 30 डिग्री. और बच्चों, ये डिस्टेंस हमने कितना निकाला था, 30 डिग्री के लिए हमने कितना निकाला था डिस्टेंस, 173. तो इस डिस्टेंस को जो पहले हमने निकाला है, उस डिस्टेंस को हम कहेंगे x. उस डिस्टेंस को हम कहेंगे x, जो पिछले स्लाइड में हमने निकाला था. 2 मार्क का क्वेश्चन है, तो वंस अगेन यू हैव टू रिपीट एवरीथिंग व्हाटएवर आई हैव डन.
So when the angle of depression was 30 degree, the distance between the ambulance and the accident site was how much? 173. And let me call it as x and say that x is equal to how much? 173. मैं फिर से उसको फिर से रिपीट करके फिर मैं कैलकुलेट करके आपको नहीं बताऊंगा, कोई जरूरत नहीं मेरे ख्याल से. यू अंडरस्टूड? हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टूड दैट 173 कैसे है? कितने को समझ में आ गया? आ गया ना? तो एग्जाम में करना है क्या सर फिर से? यस, आपको एग्जाम में तो करना पड़ेगा, मगर मैं अभी उसको रिपीट नहीं करूंगा. दिस इज 173. अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि व्हेन द एंगल ऑफ डिप्रेशन चेंजेस फ्रॉम 30 टू 45 डिग्री, कैन यू टेल मी व्हाट इज हैपनिंग इफ एट ऑल द डिप्रेशन इज चेंजिंग फ्रॉम 30 टू 45 डिग्री? क्या हो रहा है वहां पर? क्या क्या व्हाट डज इट शोज? यस, वेरी नाइस. क्या बता रहा है? एम्बुलेंस एक्सीडेंट साइट की तरफ आ रहा है, नजदीक और नजदीक आ रहा है. ओके, तो और नजदीक आ रहा है. तो पहली बार कितना था? 30 था. अब चलो ये कहेंगे हम कि यहां पर आ गया एम्बुलेंस. एम्बुलेंस कहां पर आ गया? यहां पर आ गया. ये पिछली बार हमने वी कॉल दिस एज आर. नाउ शैल वी कॉल इट एज से यस? शैल आई कॉल इट एज यस? नाउ अगेन यू सी दिस इज हाउ मच? दिस इज हाउ मच? 45 डिग्री. राइट चिल्ड्रन? दिस इज 45 डिग्री. नाउ दिस इज द अल्टरनेट एंगल दैट इज फॉर्म्ड. ये अल्टरनेट एंगल बन रहा है. बन रहा है क्या? आर यू गेटिंग एन अल्टरनेट एंगल हियर? सो इस डिस्टेंस को मैं y कहूंगा. जब तुम्हारा एम्बुलेंस 30 डिग्री से 45 डिग्री की तरफ आ गया, उस डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सीडेंट साइट को मैं क्या कहूंगा? y कहूंगा. और ये दोनों अल्टरनेट एंगल होने की वजह से मैं इसको कितना कहूंगा? 45 डिग्री. यानी आई एम टॉकिंग अबाउट दिस ट्रायंगल QPS. तो आई एम टॉकिंग अबाउट ट्रायंगल QPS. इन ट्रायंगल QPS I'll apply tan 45 is equal to opposite side by base. सही है ना? Height of the drone camera or distance on the road. So tan 45 is equal to how much? PQ upon PS. Tan 45 is 1. PQ is the height of the drone camera. What is that height? Is equal to how much? How much? 100 meters divided by PS. PS means what? I have taken it as Y. The second position को मैंने क्या बोला है? Y बोला है. So this is Y. If I cross multiply, what is that I am going to get here? Y is equal to how much? Y is equal to how much? 100 meters. Right? See, initially when the angle was 30 degree, the distance was 173 meters. Now when the ambulance is approaching towards the accident site and when the angle of depression has increased from 30 to 45 degree, the distance has become how much? 100 meters. Now what is asked to you question? Find the time taken in seconds. कितने सेकंड में एम्बुलेंस वहां पर आएगा? अभी देखो, what is the speed of the ambulance children? स्पीड ऑफ द एम्बुलेंस कितना है? 60 किलोमीटर पर आवर है. 60 किलोमीटर पर आवर. उसको मुझे क्या करना है? मीटर पर सेकंड में करना है. तो कितना किलोमीटर मतलब 60 इंटू कितना करना पड़ेगा मुझे? 1000 डिवाइडेड बाय आवर्स में कितना होता है बच्चों? ये 60 इंटू 60. ओके, 1 आवर. सी 1 किलोमीटर मीन्स हाउ मच मीटर्स? 1 kilometer means how much meters? 1000 meter. And 1 hour means how much? 60 into 60 seconds. Am I right, children? So this 60 cancels with this 60. This 0 cancels with this 0. This is 100 by how much? 100 by 6. And that means what? 2 5s are 10. 0. And this is 2 by 2 3s are 6. So ambulance is approaching towards the accident site at a speed of 50 meters, 50 by 3 meters per second. एम्बुलेंस किस स्पीड से आ रहा है? 50 meters, 50 by 3 meters per second. Now what is the distance? कितना आ जाएगा इसका डिस्टेंस? डिफरेंस कितना है उसका? स्पीड चाहिए ना अपने को. क्या चाहिए? what do you want? टाइम कितना टाइम में यहां से आएगा? What is the distance? Distance is equal to what? Y x minus y. x यानी जब 30 डिग्री था कितना था डिस्टेंस? तब बताइए आप मेरे को कितना था?
173 और ये कितना है अभी, ये कितना है, हाँ 100, यानी कितना मीटर्स हो गया, कितना मीटर्स हो गया, 73 meters is the distance traveled when the angle of depression changed from 30 to 45 degree. Now what do you want? You want the time. Again the same thing. Speed is equal to what? Speed is equal to distance by time. But time is equal to what? Distance by speed. So time is equal to distance by speed. Distance by speed. What is the 73 and what is the speed here? 50 by 3. Is it right, children? 50 by 3. So if I multiply, this is 73 into 3 into 50. 73 reciprocal लेकर. One more thing I'll do. I'll multiply by 2 here and I'll multiply by 2 here. Can you tell me why I might have done like this? Because denominator में क्या हो जाएगा, 100 आ जाएगा. एक्चुअली यहीं पर कैंसिल करने की जरूरत नहीं थी. यहीं पर अगर मैंने कैंसिल नहीं किया होता तो बड़े आसानी से हम लोग क्या कर सकते थे, डायरेक्टली 100 into 3 कर सकते थे. चलो अगर गलती को सुधारना है तो व्हाट विल डू, मल्टीप्लाई बाय 2 कर लेंगे. 3 2 जा हाउ मच, 6 3 जा 3 2 जा 6 6 3 जा 18 कैरी 1 6 7 जा 42 प्लस 1 हाउ मच, 430 डिवाइडेड बाय. So that means what, 4.38 seconds के अंदर एम्बुलेंस जो है वो 30 डिग्री से कहां तक आएगा, 45 डिग्री तक आएगा. एक बेस्ट काम आप कीजिए कि 100/6 है ना, उसको कैंसिल ही मत करो. व्हाट यू डू इज बेटर आप क्या करो, इसको डिस्टेंस कितना है यहां पर, आप थोड़ा ध्यान देना इधर मैं क्या बता रहा हूं. ये 73 मीटर डिस्टेंस है और ये 100/3 अगर आप कर लोगे डायरेक्टली 100/6 तो ये इंटू 6 हो जाएगा. तो क्या होगा, 6 3 जा 18. टाइम सेविंग टेक्निक में आपको बता रहा हूं. तो 73 इंटू 6/100 एंड दैट इज इक्वल टू हाउ मच, 4.38 seconds. Am I clear? Note down. Next question, let us see. How long in seconds will the ambulance take to reach the point P from a point T on the highway such that the angle of depression of the ambulance at T is 60 degree from the drone? See, try to understand the question. Suppose अगर ड्रोन कैमरा ये बोल रहा है कि एम्बुलेंस 60 डिग्री पर है, ड्रोन कैमरा ये बोल रहा है कि एम्बुलेंस 60 डिग्री पर है, तो और वो पॉइंट जो है वो दैट पॉइंट इज हाउ मच, एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना, 60 डिग्री पर है, तो कितना टाइम बोलेगा. यानी मान लीजिए सपोज दिस इज द ड्रोन कैमरा. व्हाट इज द हाइट ऑफ द ड्रोन कैमरा, व्हाट इज द हाइट ऑफ द ड्रोन कैमरा, या फिर आप अलग सा चाहिए तो अलग सा भी फिगर बना सकते हो. ये ड्रोन कैमरा 100 मीटर वर्टिकली अबव द ग्राउंड है और मान लीजिए यहां से एंगल ऑफ डिप्रेशन बता रहा है कि दिस इज द पॉइंट टी है, ये पॉइंट टी है. एम्बुलेंस कहां तक पहुंचा है, 60 डिग्री यहां तक पहुंचा है. इसको हम कहेंगे दिस इज क्यू, दिस इज पी एंड से दिस इज से एम. अगर ये 60 डिग्री डिप्रेशन बता रहा है तो ये कितने टाइम में पहुंचेगा, कितने टाइम में एम्बुलेंस पहुंचेगा, कहां तक पहुंचेगा, एक्सीडेंट साइट पर. तो ये 60 डिग्री है बच्चों, तो ये कितना होगा, ये कितना होगा, 60 होगा, राइट. अल्टरनेट एंगल्स होगा. इसको कोई लेना नहीं है, 30 डिग्री से हमको कोई लेना देना नहीं. अभी हमको क्या पूछा है, अगर ड्रोन कैमरा 60 डिग्री बता रहा है डिप्रेशन, तो एम्बुलेंस को एक्सीडेंट साइट तक पहुंचने के लिए कितना टाइम लगेगा. तो देखिए आई विल, सो व्हाट आई विल से इज एम क्यू टी और क्यू टी पी आर अल्टरनेट एंगल्स, तो दिस इज 60 डिग्री. अब मैं यहां पर क्या करूंगा, इन राइट एंगल ट्रायंगल क्यू पी टी आई विल अप्लाई व्हाट, वर्टिकल डिस्टेंस है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है. सो अपोजिट और बेस को कौन सा कनेक्ट करता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, हाँ tan 60 कनेक्ट करता है. तो tan 60 को मैं यूज करूं तो क्या होगा, ये QP बाय व्हाट इज इट, QP बाय PT. तो tan 60 कितना है बच्चों, √3. QP कितना है 100 और PT कितना है, हमको ढूंढना है डिस्टेंस. तो
इसको अगर मैंने यूज किया तो PT इज इक्वल टू हाउ मच, 100/√3। अब यहां पर देखो, इस 100/√3 को रैशनलाइज में करूंगा तो √3 से इंटू और √3 से डिवाइड करेंगे हम। सो फाइनली व्हाट इज दैट आई एम गोइंग टू गेट हियर इज 100√3/3 और √3 की वैल्यू आपको दे दी ऑलरेडी। व्हाट इज द वैल्यू गिवन टू यू, 100 इंटू 1.73 divided by 3. So that means what, 100 into 1.73 is how much children, 173/3 meters. What is this? What is this? This is the distance traveled by the ambulance from the point T to the point of accident. अभी स्पीड ऑफ एम्बुलेंस मैंने, अगर पिछले इस बार किसी को समझ में नहीं आया तो यहां पर फिर एक बार समझ लो कि करना क्या है। स्पीड ऑफ एम्बुलेंस इज हाउ मच, 60 km/h है। फिर से मैं आपको बता दूं, व्हाट इज इट, 1 किलोमीटर यानी कितना मीटर होगा, 1000 मीटर, एंड 1 आवर मीन्स हाउ मच, 60 into 60 seconds. तो दिस इज 60 into 1000 and hour is how much, 60 into how much, 60. Am I clear? Am I clear? So what I'll do here, 60 cancels with 60, right? 0 cancels with 0. So what is that I am going to get here, 100/6 meter per second. 100/6 meter per second. Now यहां पर मैं इसको पॉइंट में कन्वर्ट नहीं करूंगा क्योंकि लास्ट टाइम हमने कन्वर्ट किया था, फिर से इंटू 2 करना पड़ा। व्हाट आई डू इज डायरेक्टली स्पीड इज इक्वल टू, आपको क्या बताया था मैंने, आपको स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो टाइम इज इक्वल टू व्हाट, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो मुझे चाहिए टाइम, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना है, देखो आप 173/3 डिवाइडेड बाय 100 डिवाइडेड बाय 6। तो ये होगा 173/3 इंटू 6/100। ओके, तो ये होगा 3 1s are 3, 3 2s are 6. So this becomes how much, 2 3s are 6, 2 7s are 14, carry 1, 2 1s are 2 plus 1 is how much, 346 divided by 100. नाउ कितना इजीली आप डिवाइड कर सकते हो, देखो 2 0 होने की वजह से आप क्या कर सकते हो यहां पर, हाउ मच विल इट बी, 3.46 seconds. 3.46 seconds. That means what, if the drone camera is showing that ambulance is at the angle of depression of 60 degree, and if the ambulance is moving at a speed of 60 km/h, then that ambulance will take 3.46 seconds to reach the accident site. So you have seen three situations. When the angle was 30 degree, what happened? When the angle was depression changed from 30 to 45 degree, what was the condition? And when the angle of depression changed to 30 degree, what happened? So this is the best and the beautiful way to understand the applications of trigonometry in our day-to-day life and the applications of drone cameras in our day-to-day life, right? तो इसी तरह से लोकेशंस ट्रेस किया जाता है।